दिन की एक और बड़ी खबर जिसका हम रुख करने जा रहे हैं, राहुल गांधी की लगातार आज तीसरे दिन ईडी के दफ्तर में पेशी। आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी को एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये लगातार तीसरे दिन तस्वीर वही जो आज देखने के लिए मिलेगी। तीसरे दिन ईडी राहुल गांधी से फिर से पूछताछ करेगी। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज की तरह कांग्रेस पार्टी ने आज भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी आज फिर राहुल गांधी के घर पहुंच गई हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर के लिए निकल सकते हैं। और इस सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं पी चिदम्बरम। पहले दिन जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन सड़क पर संग्राम करते हुए पी चिदम्बरम भी नजर आए थे, लेकिन उसके बाद शाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि इस दौरान वो घायल हो गए, चोटिल हो गए। और उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। ये बातचीत देखिए जरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है। उनकी क्वेश्चनिंग आज फिर से होने वाली है और हमारे साथ इस बारे में खास तौर पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब हैं। चिदम्बरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है सर कि यू वर ऑल्सो हर्ट, आपको भी चोट लगी थी, उसके बावजूद आपने टाइम दिया। चिदम्बरम साहब, आज तीसरी बार राहुल गांधी जी को बुलाया गया है, तीसरे दिन लगातार। आपको क्या लगता है ये किस दिशा में जा रहा है? इन विच डायरेक्शन? दिस इज द हैबिट ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. They will say that we have grilled the person for 10 hours, 11 hours, but effectively what they ask you is maybe 30 or 40 questions, and after every 3 or 4 questions they will take a long break and they will go upstairs or to another room and ask for instructions and come back and ask you 3 or 4 questions. So this is the pattern. Otherwise, there is no reason why any person who is questioned in this case should be questioned for 11 hours and 10 hours, and today is the third day. The surprising part is, rather amusing part is, everything is there in the records. The balance sheet, the profit and loss statement of both Associated Journals Limited and Young India, the two companies, are filed before the Registrar of Companies. Mr. Rahul Gandhi has filed his income tax returns. There is an income tax case on the same facts before the Supreme Court in which affidavits have been filed. So really there is nothing to seek by way of a question. It's all there in the record. Then फिर आपको क्या लगता है कि अगर सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतने घंटों बुला करके बिठाए 3 दिन लगातार, अभी ये भी तय नहीं है कि आगे भी बुला सकते हैं? What could be the motive? आपको क्या लग रहा है? I don't know, but I'm pretty sure they asked him questions about where he studied, which college he studied, how many years he studied. I mean, I'm sure they asked such questions. And it's only when the transcript is made available, and mark, they never make it available. They never disclose the transcript to the court or to anyone. That such kind of questions are asked. The point is very simple. The matter is pending before the Supreme Court. The ED is not higher than the Supreme Court. Whatever the Supreme Court rules on the income tax matter will be the decision. ED can't rule on the income tax matter. And what is surprising is, in an alleged, I'm not admitting it, in an alleged income tax violation, what jurisdiction has the ED to start a PMLA investigation? Here is the Prevention of Money Laundering Act. Now this has a schedule. The schedule in this book starts at page 78 and goes up to page 88. Now show me one provision of the Income Tax Act which is an offense under the schedule. Income Tax Act is not here at all. If the violation of the Income Tax Act is not here, how does the PMLA apply?
And how does the ED start an investigation under PMLA? सर उनका कहना है दे से दैट इस मैटर में ECIR इज रजिस्टर्ड. Show us the ECIR. Please show us the ECIR. They are not even showing the FIR of the predicate offence. We are saying there is no scheduled offence against Mr. Gandhi. If there is a scheduled offence, show us the FIR. Which is the police agency, CBI or a state police, which has registered an FIR? Which police station? What is the FIR number and date? Now you don't answer any of these questions. And then you say there is an ECIR. All right, show us the ECIR. यानी अभी तक ECIR भी नहीं दिखाई गई है सर आपको? They have not shown the FIR or the ECIR. तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को कह रहे हैं कि बेवजह राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं. तो आज लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी के सामने पहुंचना है और इस बीच कांग्रेस के तेवर एक बार फिर से बिल्कुल तीखे नजर आ रहे हैं, वैसे ही जैसे पिछले 2 दिन नजर आए थे. सीधे आपको लेकर चलेंगे कांग्रेस मुख्यालय से. हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं और राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी अहमद बिलाल. पहले जल्दी से बिलाल से अपडेट लेते हैं. बिलाल, किस तरीके की सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है? क्या निकलने वाले हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी यहां राहुल गांधी के घर पहुंची थी और आप देख सकते हैं मूवमेंट जो सुरक्षा जवानों की है वो शुरू हो गई है. जो गाड़ियां हैं सुरक्षा जवानों की अब वो राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर जो है लगनी शुरू हो गई है. अब से कुछ चंद मिनटों बाद ही राहुल गांधी जो है वो अपने घर से निकलेंगे. जैसा कि माना जा रहा है कि लगातार 2 दिनों तक जैसे वो अपने घर से निकल करके कांग्रेस मुख्यालय गए थे, वहां पर 15 से 20 मिनट तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद वो ईडी दफ्तर के लिए निकले थे. वैसा ही आज ही माना जा रहा है कि आज अभी से कुछ मिनटों के बाद वो अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ अपने घर से निकलेंगे और सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे. वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो आगे जो है ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर उनसे आज लगातार तीसरे दिन की पूछताछ जो है वो जारी रहेगी. अभी तक 22 घंटे की पूछताछ जो है उनसे हो चुकी है और आज तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ जो है ईडी के दफ्तर में हो गई. जी रुमाना, बिल्कुल. तो तीसरे दिन भी तस्वीर वही रहने की उम्मीद जताई जा रही है. सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है. जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके की हलचल आज कांग्रेस मुख्यालय में. अंकित, रोमाना, अगर हम 3 दिनों की तस्वीरों की बात करते हैं तो जो पहले दिन की तस्वीर थी उसके कंपैरेटिव कल की जो तस्वीर थी वो अलग थी और आज की तस्वीर उससे भी अलग है. किस लिहाज से मैं ये बात कर रहा हूं, पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं कांग्रेस मुख्यालय की. देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में पहले दिन जब यहां पर हम पहुंचे थे तो उस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे थे, लेकिन आज वैसा नहीं है. दूसरे दिन जब राहुल गांधी के यहां पर आने की जानकारी मिल रही थी तो उस दौरान तमाम जो नेता थे वो यहां पर लाइन लगा के इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो भी नजर नहीं आ रहे. वहीं कुछ एक जो कार्यकर्ता है वो यहाँ जरूर बैठे हुए हैं, वो पिछले 3 दिनों से उसी तरीके से बैठे हुए हैं और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर बदली उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पुलिस और प्रशासन ने अकबर और जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है उसके आसपास के सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं. किसी को यहां तक आने की अनुमति नहीं है. जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की, उसमें आधिकारिक मंच से कहा गया कि यहां पर जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, राजस्थान के सीएम है यानी कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत, वो भी उनको भी यहां तक आने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर अभी तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच जाते थे पिछले 2 दिनों के दौरान आज नहीं पहुंचे हैं. यहां तक कि कल भी जो संख्या सीमित की गई थी और आज तो उससे भी कहीं कम संख्या में यहाँ पर नेता भी नजर आ रहे हैं. कल हमने देखा था कि कई नेता, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कम थे कार्यकर्ता और आज जब तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना है सवालों का जवाब देने के लिए, तो कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कांग्रेस दफ्तर जाने के तमाम रास्ते जो हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी है. बाबा उड़िया सिटी जानी ना
Curiosity? Curiosity कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। Curiosity. वो बहुत दूर है। Curiosity. दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। Curiosity कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। Curiosity. क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। Curiosity. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।